Okay, now now put your present in the chat box. Done, ma'am. Okay. Okay. We were dealing with weights, this heavy and light. In that, I have given you this homework. Have you completed? Yes, ma'am. Okay, good. Okay, so orally, can you tell me which plate of balance will go down, left or right? Okay, Okay, ma'am. in this one, bolo, which will go down in this? Ma'am, 175, ma'am. This one. ma'am, the second one. 175 kg and 140. Right wala. Okay, in this, Ma'am, Ma'am, here. here, again the right one. Yes, ma'am. Same. Okay, here. yes, ma'am. Ma'am, I will calculate it. Why? You said na you have done the homework. Ma'am, actually, I had done it in another notebook. It is in hallway. I have to go again, so I'll miss. I'm afraid. Okay. By comparing the numbers only, you can get na. Left Ma'am, wala the will be left heavier. one. Yes. Here, right one. Ma'am, right one. Sorry, left one. Left one. Right 197. में 197, इसमें 196 के साथ 20 भी है, तो लेफ्ट वन. एंड हियर 63 and 100 kg, ma'am. yes, so right one. Good. Now grams and kilograms. Name 5 things we usually buy. हम ग्राम्स में क्या खरीदते हैं एंड किलोग्राम्स में क्या खरीदते हैं? Ma'am, we buy book which is in grams and some rice. Book. Yes, it is in grams only, right, ma'am? Like Books. books. We buy. Yeah. No, we do not buy them in grams. Ma'am, books come in kilograms. यस, बट हम किलोग्राम में भी नहीं खरीदते हैं. अगर जो मतलब आप यूज किए हुए बुक खरीदने जाओगे तभी हम किलोग्राम्स में खरीदते हैं. अदरवाइज क्या आप आपके जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड वाले बुक होते हैं न्यू, क्या आप किलोग्राम्स में खरीदते हो? नो. द ग्रोसरी एंड द वेजिटेबल्स दैट विल कम इनटू दिस. सो टेल मी फ्रॉम दैट groceries and all. Ma'am, we buy rice and tur Ma'am, dal, we chana buy dal, rice urd dal, and some other and groceries also. vegetables, And fruits. dals, vegetables. That's it, ma'am. Okay. See, which will be heavier, 1 kilogram cotton or 1 kilogram iron? Iron, ma'am. Yes, obvious. Okay. Dinson went a shop and bought some things. His younger brother cut the end of the bill where the weights were written. तो जब वो शॉप में गया और उसने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन उसका जो भी छोटा भाई था उसने क्या किया, वेट लिखे हुए थे जहाँ पे वही पार्ट फाड़ दिया बिल का. सो गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और किलोग्राम. तो आपको क्या करना है, चीजों को ग्राम एंड किलोग्राम में बताना है कि कितने कौन सी चीजें उसने ग्राम में खरीदे होंगी
और कौन सी चीजें उसने किलोग्राम में खरीदी होंगी? राइस, किलोग्राम। यस। शुगर, आई डोंट नो मैम, ग्राम और किलोग्राम मैम। किलोग्राम। 1 ग्राम शुगर विल बी वेरी लेस, तो उतना हम क्या करेंगे उसका? मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड, राई के दाने। किलोग्राम ओनली मैम। नो, 10 किलोग्राम। What you will do with that? It will be 10 kg. Gram. Next. Wheat, केजी ओनली। Ma'am, kg. 3 gram. Sorry, kg. दाल, केजी। Ma'am, 500 gram. ग्राम। kg नहीं होगा, 500 किलो का क्या करोगे, कहाँ पे रखोगे? टी, ग्राम्स ओनली चाय मैम। पत्ती, Gram. ग्राम। grams, 250 gram. And paper, ग्राम। Ma'am, gram. very good. Here, Ritu is weighing her toys. She wants to know if her tractor is heavier than her car. How would you help her to find out quickly? क्या किया उसने? दो प्लेट्स लिए, तो उसने एक कार डाली उसमें और दूसरे में ट्रैक्टर डाला, तो ट्रैक्टर वाला प्लेट यू कैन सी गोइंग डाउन, तो इट मस्ट बी मैम, हेवियर। heavier one will go down and the lighter one will go up. यस, यस। नाउ, elephant's way. Once a king had pain in his stomach. None of the palace doctors could cure his pain. ओके, एक बार एक राजा था, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने जो भी डॉक्टर ट्राई किया, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। The king then said, anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. तो किंग ने उसके बाद क्या कहा राजा ने, कि जो भी मेरा ये पेन ठीक कर देगा, उसे मैं एक एलिफेंट के वेट के जितना सोना दूंगा। On hearing this, doctors from all over the country came, but only Dr. Vedika could cure him. Oh great, my pain has gone. Thank you, Dr. Vedika. So I can have my reward now, sir. तो तभी सारे कंट्री के जो भी डॉक्टर्स थे, वो प्राइस ही ऐसा कि लिखा हुआ था कि एलिफेंट के वेट के जितना सोना मिलेगा, सो दे ऑल केम विद द होप दैट दे विल गेट दैट गोल्ड। सो उनमें से डॉक्टर वेदिका थी जिन्होंने उनका पेन ठीक कर दिया। So she asked for the reward, but the greedy king didn't want to give the gold, so he thought of a trick. लेकिन वो राजा बहुत ही greedy था, तो उसको वो जो डॉक्टर थी उनको गोल्ड नहीं देना था। So what he did? Okay, first find the weight of an elephant, then I will give you um, that much gold. तो उसने क्या बोला कि पहले, हाँ, पहले आप एलिफेंट का वेट फाइंड करो, वेट करो एलिफेंट का, एंड देन आई विल गिव यू, जितना वेट होता है मैं उतना सोना आपको दे दूंगा ना। Vedika was unhappy when she reached home. She told her daughter the whole story. तो ये सुनने के बाद वेदिका बहुत दुखी हो गई, एंड जब वो घर गई तो उसने अपनी बेटी को ये कहानी सुनाई। So, how can I weigh an elephant? Where will I get such a big balance? तो उसने बोला कि मैं ये एलिफेंट का वेट कैसे कर पाऊंगी, इतना बड़ा बैलेंस मैं कहाँ से लाऊं? Don't worry, ma. I have an idea. Tell the king to arrange an elephant and a big boat. तो उसकी बेटी ने क्या कहा कि माँ, मेरे पास एक आइडिया है, आप राजा को एक एलिफेंट एंड बड़ी सी बोट अरेंज करने के लिए बोल दो। Next morning, Dr. Vedika invited the king near a river. The king came with an elephant and a big boat. तो नदी किनारे वो राजा आया, उसने अपने साथ एक एलिफेंट एंड बड़ी बोट लाई। I think she is a fool. How will she weigh an elephant with a boat? तो राजा ने सोचा कि मुझे लगता है ये फूल है, एक एलिफेंट का वेट ये कैसे कर सकती है बोट के साथ। So Vedika's daughter went into the river. She marked
on the boat, how much it sank in the river. तो वेदिका के डॉटर ने क्या किया, वो चली गई अंदर बोट के, और जहां तक सॉरी शी गोज इन टू दैट रिवर, नदी के अंदर चली गई, और जहां तक वो सिंक हो रही थी बोट पानी में, उसने मार्क कर दिया. देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट sank deeper, so she marked the new water level on the boat. तो अभी क्या किया उसने, अ, हाथी को डालने बोला बोट में. जब हाथी आया तो बट ऑब्वियस बोट और नीचे चली गई, तो उसने वो भी वहां पे मार्क कर दिया. नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी. So what do you think? What would have happened? Ma'am, एक I एक think करके that आंसर Vedika दीजिए. found the weight हाँ. of the elephant and then she would tell it to the king, and the king would be very happy and he would give Vedika a lot of gold. Means what is the No, weight no. of the But how would she find out the weight? What do you think? वहां पे कोई वेट नहीं यूज किया था उसने, तो वो गोल्ड को, मतलब एलिफेंट का वेट इतना है और इतना गोल्ड आपको हमें देना है, ये कैसे फाइंड आउट कर सकती थी? रिद्धिश्री, Ma'am, विल by यू? checking the water level. Yes, ma'am. Yes. Actually, she will calculate the water level, how much the deep the boat sank. She will calculate and she will write it on a board. And next, the king will ask her the elephant's weight, and she will happily tell the weight, and she will get all the gold. नो, सी व्हाट आई एम आस्किंग इज, उसको सोना कितना मिला होगा, कैसे मिला होगा? ऑल द गोल्ड, हाउ कुड यू से ऑल द गोल्ड? सी, तब उसने क्या किया, एलिफेंट वॉज रिमूव्ड. यस, एलिफेंट को निकाला वहां से, और बोट पर जो भी मार्क किया हुआ था. देन उसने किंग से रिक्वेस्ट की होगी कि आप इस बोट में सोना डालो. अभी एलिफेंट जब बोट में था, तब बोट जहां तक सिंक हो रही थी, उतने मार्क तक बोट सोने से भी सिंक होने के बाद उन्होंने वो सोना एलिफेंट के वेट जितना है ये डिक्लेयर कर दिया, और राजा ने उतना सोना उनको दे दिया. गॉट? यस. Yes, ma'am. यस, क्लियर? इज इट Yes, ma'am, क्लियर? got it. रिद्धिश्री, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सी, फर्स्ट में तो उन्होंने क्या किया था, पहले तो लेवल चेक किया था बोट का बाय गोइंग इनसाइड, राइट, लाइक दिस. एलिफेंट उसमें जाने के बाद वो लेवल यहाँ तक आ गया, तो उनको सोना मेजर करना था एलिफेंट के वेट जितना. तो उन्होंने क्या किया, बाद में फिर से एलिफेंट को उसमें से निकाला, और वो सोना भरते गए उस बोट में, जब तक कि बोट इस लेवल पर ना आ जाए. और जब बोट इस लेवल पर आई, तो वो सोना एलिफेंट के वेट जितना हुआ. ओके. नाउ, हाउ मच द चेयर वेट्स? Anamika wants to weigh this chair using the weighing machine. Can you suggest a way for doing this? अनामिका को वेइंग मशीन यूज करके इस चेयर का वेट निकालना है, तो क्या आप कुछ सजेस्ट कर पाओगे? What do you mean? What, ma'am? Anamika wants to check the weight of that chair using weighing machine. So किस तरह वो वेइंग मशीन यूज करके उस चेयर का वेट निकाल सकती है? कैन यू टेल मी? Ma'am, by putting the chair on the weighing machine. Anything else? Ma'am, after putting the chair on the weighing machine, she will see how many kilograms and grams the chair is. That's it. But can that chair be placed easily on that weighing machine? चेयर के चार पैर रहते हैं, No, और वो ma'am. वेइंग मशीन, तो क्या कर सकती है वो? I don't know, ma'am. Please, you can tell me. ओके.
So she can use a flat surface, wooden, it must be a wooden surface, एक slab जैसा कुछ वो use कर सकती है जिसके ऊपर वो चेयर को रख देगी और वेट कर लेगी। बाद में वो सिर्फ स्लैब का वेट कर देगी और वो पूरे वेट में से अगर वो स्लैब का वेट माइनस कर देगी सो शी कैन गेट चेयर का वेट और उसकी जो वेइंग मशीन है उसको कुछ हार्म भी नहीं होगा एंड शी कैन इजीली टू चेयर्स वेट, राइट? Ma'am, can you please tell me again? I didn't hear. Okay, so here क्या बोला गया है हमें कि इस चेयर को इस वेइंग मशीन पे हमें वे करना है लेकिन इसके चार पैर है जो इसे बैठ नहीं सकते। सो वी कैन टेक अ फ्लैट सरफेस, अनामिका बेसिकली कैन टेक अ फ्लैट सरफेस स्लैब लाइक थिंग जो कि वुडन हो और वो इस पे रख देगी। इस पे तो इजीली ये चार पहिए भी बैठ जाएंगे, ओके। लेकिन वेट जब होगा तो ये इन दोनों का वेट होगा, ये स्लैब और प्लस ये चेयर। बाद में सिर्फ चेयर निकालने के बाद सिर्फ इस स्लैब का वेट लेंगे तो चेयर का वेट प्लस स्लैब का वेट, इनमें से अगर आप सिर्फ स्लैब के वेट को माइनस कर दोगे सो यू विल गेट चेयर का वेट, राइट? यस, Yes, नाउ ma'am. गॉट इट? ओके, Yeah, ma'am, got it. नाउ ब्रोकन स्टोन्स। Abdu sells firewood. There was a stone in his shop which weighed 13 kg. He used it to weigh firewood. One day the stone fell down and broke into three pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. सी अब्दू के पास अब्दू फायरवुड सेल करता था, बेचता था जलने का जलाऊ जो लकड़ी होता है वो। तो उसके पास 13 kg का एक बड़ा सा पत्थर था जिसको यूज करके अब्दू वेट किया करता था लकड़ियों का। बट वन डे वो स्टोन गिर गया और थ्री पीसेस में बट गया। एक पीस था 2 kg का, एक था 5 प्लस एक था 6 का। तो 2 + 5 इज 7 एंड 7 + 6 इज 13 kg। ओके, कोई भी वेट लॉस नहीं हुआ था, पत्थर तीन टुकड़ों में बट चुका था लेकिन वेट उतना ही था। बट Abdu was very smart. He used those three pieces to weigh firewood of all weights from 1 kg to 9 kg. तो अब्दू बहुत होशियार था। तो उसने क्या किया, 1 kg to 9 kg तक पहले तो उसको उसके पास डायरेक्टली 13 kg का था स्टोन, तो वो सिर्फ 13 kg फायरवुड ही नाप सकता था। लेकिन अब्दू ने अभी जबकि उसके पास 2 kg देन 4 kg, सॉरी 5 kg एंड 6 kg भी आ गया है, तो वो 1 kg से लेकर 9 kg तक क्वांटिटी मेजर कर सकता था। तो हियर इज हाउ अब्दू वे 1 kg ऑफ फायरवुड। तो 1 kg कैसे मेजर किया उसने? द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg। सी उसने क्या किया, 6 kg एक पैन में रख दिया और 5 kg दूसरे पैन में रख दिया। 5 kg वाले पैन में उसने वुड डाला जब तक के दोनों पैन बैलेंस न हो जाए। जब दो पैन बैलेंस हो गए तो उसने फाइंड आउट किया कि उसने जो भी 5 kg वाले पैन में फायरवुड डाला था उसका वेट 1 kg था। गॉट गॉट दिस, ये समझा है? Yes, ma'am, got it. ओके, नाउ यू शो हाउ Abdu will use these stone pieces to weigh 4 kg ऑफ फायरवुड। अगर अब्दू को 4 kg ऑफ फायरवुड मेजर करना है तो वो बैलेंस में कैसे यूज करेगा, क्या आप बता सकते हो? Ma'am, 2 kg 2 kg एंड, and 5 kg.
ओके, सी कैसे करेगा अब्दू को? क्या करना है अभी? 4 kg मेजर करना है ना? यस। सो व्हाट ही कैन डू हियर इज, वो यहाँ पे 6 kg वाला वेट रख सकता है, क्योंकि 4 kg तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 6 और 5 इज देयर। एंड दूसरे पैन में 2 kg वाला रख सकता है। यस। तो यहाँ पे अगर 6 - 2 किया जाए, द डिफरेंस विल बी गेट इज 4 kg, 4 kg. राइट? Yes, ma'am. ब्रोकन स्टोन 6 kg का उसने लेफ्ट पैन में रख दिया, एंड 2 kg का राइट पैन में रख दिया। ओके, तो अगर वो वेट माइनस किया जाए, सो ही कैन गेट 4 kg। 3 kg कैसे मेजर करेंगे? 3 kg के लिए व्हाट ही कैन डू? Ma'am, he will take 2 kg and यस, yes, 5। 5, ma'am. यस, 2 Yes, 2 kg kg एंड 5 and 5 kg। kg. तो यहाँ तो पे यहाँ पे जब जब बैलेंस हो बैलेंस हो जाएगा, जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो पैन बैलेंस हो जाएगा, एंड इट विल गेट 3 kg weight। Okay, like that 7 kg also you can find out. Now, post office. Have you ever been to a post office? क्या कभी post office गए हो आप? yes, ma'am. Yes. Okay, good. What different things do people go there for? किस लिए जाते हैं लोग वहाँ पे? लेटर्स के लिए पोस्ट करने में। पोस्ट कार्ड लेने, मनी ऑर्डर लेने, या भेजने, या फिर लेटर्स डालने, राइट? हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? क्या पता है आपको पोस्ट कार्ड का कितना अमाउंट होता है? आई डोंट नो, मैम। Okay, here I think they have given 0.50, मतलब 50 पैसे, not a whole rupee also. How much does an inland letter cost? Inland letter 2.5 रुपया, 2.50 rupees. Okay, now how much will you have to pay for stamp on letter weighing 50 gram? Okay, 50 ग्राम का स्टैम्प है, तो आपको कितना पेमेंट करना होगा? एटलीस्ट 5 रुपीज, मैम। 5 रुपीज, मैम, एटलीस्ट। How much will you have to pay for stamps on letter weighing? लेटर के लिए पूछा है, पार्सल वेइंग के लिए 5 ग्राम है, लेटर वेइंग के लिए पूछा है हमें। लेटर वेइंग का हमें 20 ग्राम्स और उससे कम के लिए दिया गया है 5। तो वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। सी, चलो राइट डाउन अलोंग विथ मी। क्या पूछा गया है हमें? लेटर वेइंग। फिफ्टी ग्राम, और हमें ये बताया गया है इंफॉर्मेशन में कि 20 ग्राम और उससे कम के 5 रुपीज लगते हैं। ओके, तो चलो, सो 20 50 gram is there, right? So up to 20 grams स्टैम्प ड्यूटी कितना होगा? 5 रुपीज, राइट? देन 50 में से ये 20 तो चले गए, पहले 20, अभी नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 20 ग्राम के लिए for every additional 20 gram 2 rupees. Okay,
2 rupees. And next 10 gram will be 2 rupees. हमारे 50 complete हुए, 20 20 10 5 2 2. So it will be total कितना होगा stamp cost? 9 rupees. Yes, total cost will be 5. Sorry, is equal to rupees 9. So we have to pay 9 rupees for letter weighing 50 grams. Then Okay, gram wrote. Okay. good. Both are done. Jai Sudha, have you completed? Okay, she has it. So, can you try the next one? Ridhishri, आप next try करोगे? Okay, ma'am. Okay, I will give you. First of all, you have to take a screenshot of this so that आपको जो given है वो मिल जाए. Done? Done, ma'am. Okay. First तो हमने solve कर दिया. Second वाला you have to solve. Akash wants to send a parcel of a math magic textbook to his friend Rani in Chennai. The book weighs 200 grams. See the chart to find the cost of posting the book. ये पार्सल होगा, हाँ, ये लेटर नहीं है, ये पार्सल होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशंस करने हैं. Yes, Riddhishri, will you have you taken the screenshot? What? Done, ma'am, already. Okay, okay, solve and then let me know. Daksh, Daksh, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, good. Thanks for responding. Now, third standard. Okay, jugs and mugs. Wedding in Bunny's family. There is a wedding in Bunny's family, a family of rabbits. Okay. Many guests are invited: deer, monkeys, elephant, cat, dogs, mice, foxes, camel, mongoose. सबको बुलाया गया. A special drink is served to all the guests. सबको एक स्पेशल ड्रिंक सर्व की गई. देन 1 glass each. सबको एक एक ग्लास करके एक स्पेशल ड्रिंक सर्व की गई. Everyone finds the drink very tasty, but some small guests like dash 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 cannot finish a full glass. तो स्मॉल गेस्ट कौन हो सकता है? माइस एंड मुंगूसेस, राइट? सो वो पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर पाए, बट डैश डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास. लेकिन उसमें से किसी ने लाइक दैट मस्ट बी, यस, कौन था बड़ा एलिफेंट? सो ही मस्ट हैव फिनिश द ग्लास. सम अदर्स लाइक डैश 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 एंड डैश डैश आस्क फॉर मोर देन 1 glass. उनमें से कुछ लोगों ने ज्यादा की मांग की. ओके, now bunny, there are some big guests who go on gulping down glass after glass. Bunny wants to guess who drank how much. Help him fill the table, have fun. तो बनी को अभी कैलकुलेट करना है कि किसने कितना ड्रिंक पिया होगा. तो कैन यू हेल्प बनी? यस,
लेस देन 1 ग्लास, सबसे कम किसने पिया होगा? बोलिए दक्ष। लेस देन 1 ग्लास। Yes, ma'am. कौन सा एनिमल ने पिया होगा? Should I show you the list of animals? Yes. Okay. Here, बताइए। सबसे कम पिया होगा माइस। यस। एंड देन उसके बाद बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस किसने पिए होंगे? कैट्स, डॉग्स। ओके। देन उसके बाद है 5 to 10 ग्लासेस एंड मोर देन 10 ग्लासेस। 5 to 10 ग्लासेस पिए होंगे फॉक्सेस, मंकी। यस। एंड मोर देन 10 elephant and camel. Okay, just we are guessing. So water in, water out. Have you ever thought like a laddu about how many glasses of water do you drink in day? So can you tell me summer days में आप कितने glasses पानी पी सकते हो या फिर पीते हो? Just a guess. Yes. We should have 8 to 10 glasses of water. And winter days में उससे कम, तो बता सकते हो आप दक्ष? विंटर डेज में 8 to 10 ग्लासेस से कम मतलब कितना पानी पीते हैं? यस दक्ष, प्लीज डू टॉक। अभी विंटर डेज में जब Ma'am, ठंड two. होती है, आप इतना कम नहीं पीते, हम पूरे दिन में 5 to 6 ग्लासेस वी शुड हैव। ओके। Now bottles and buckets. Get a 1 liter bottle, can be an empty bottle of water, oil, okay, जिसमें 1 लीटर का जो भी हम पानी खरीदते हैं वो बॉटल आप ले सकते हो। Now collect some bottle and a mug, jug, glass, bowl, etc. at your house. इस तरह से मग लेना है, जग, ग्लास, बाउल लेना है। ओके। Use the 1 liter bottle to check which of these more than 1 liter एंड विच वन होल्ड लेस देन 1 लीटर। तो आप क्या करोगे? आपका 1 लीटर पानी है, आपको कैसे पता चलेगा? जो भी आपने 1 लीटर का लिया है बॉटल, उसमें आप पूरा भर दोगे और उससे सारा सब में पानी डालना स्टार्ट कर दोगे। तो बाउल, बाउल लेस देन 1 लीटर होगा। बिग कुकिंग पॉट, पतीला बड़ा सा, मोर देन 1 लीटर होगा। छोटा ग्लास लेस देन 1 लीटर होगा। देन जग भी समटाइम लेस देन 1 लीटर हो सकता है। मग लेस देन 1 लीटर, और उससे यहाँ पे कढ़ाई ली गई है, इट विल बी मोर देन 1 लीटर। ओके। सो ना गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। अगर आप बकेट ले रहे हो तो बकेट में कितना पानी जा सकता है? जस्ट गेस कीजिए। यस। 1 लीटर की बॉटल के हिसाब से एक बकेट में कितना पानी जाएगा? कैन यू गेस? अकॉर्डिंग टू द बकेट आप
10 grams or 5 grams, ma'am. No, Water. we are talking about liters. Oh, 10 liters, Water. ma'am. Yes, water we always measure in liter. सो लाइक दैट आप आपने जो गेसेस किए हैं वो भी आप इसमें 1 लीटर का बॉटल लेके चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ मैच द राइट पेयर. अबाउट 12 years, sorry, 12 liters, less than half liter, about 5 liter, 1000 liter and half a liter. बताइए दक्ष किसमें कितना पानी रह जाएगा. जो वाटर टैंक है सबसे बड़ा जो हम यूजुअली हमारे घर के ऊपर होता है उसमें कितना पानी होगा. व्हाट डू यू थिंक. बोलिए दक्ष. 20 liters, ma'am, I guess. नो, 20 liters Ma'am, पानी हमें. 1000 liters. यस, 1000 लीटर. ओके, तो दक्ष आप ड्रॉ कर सकते हो. वेट, हाँ यस. सो हमें राइट मैच करना है राइट पेयर. सो 1000 लीटर वाटर टैंक. देन ये जो बकेट है इसमें कितना बैठेगा पानी. दक्ष. 5 liters, ma'am. नो, अबाउट 12 liters. ओके, देन ये जो यहाँ पे वाटर पानी की सुरही है वहां इसमें कितना बैठ सकता है. 5 liters. ओके, एंड हाफ लीटर इसमें जाएगा हाफ लीटर. एंड लेस देन हाफ लीटर से कम विल गो इन दैट. छोटा सा आई ड्रॉप का बॉटल है. ओके, दक्ष टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट and you can draw the pictures and match the same. Done with the screenshot, Daksh? Yes? Okay. Okay, good. Next. Whose jug holds more? What are Naima and Jitu doing? If Naima pours 1 glass of water in her jug, it looks like this. अगर नैमा ने अपने क्या कर रहे हैं वो दोनों. नैमा एंड जीतू दे आर पोरिंग वाटर इनटू द जग. अगर नैमा ने अपने जग में 1 ग्लास पानी डाला तो वो इस तरह दिख रहा है. नैमा थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 glasses ऑफ वाटर टू फिल द जग. नैमा को लगता है कि अगर वो 3 ग्लासेस पानी उसमें डालेगी और तो उसका जग भर जाएगा. इज इट राइट दक्ष. व्हाट डू यू थिंक. आई थिंक यस. If Jitu pours 1 glass of water in his jug, it looks like this. अगर जीतू ने 1 ग्लास पानी अपने जग में डाला है तो इसमें इस तरह दिखता है. तो whose jug holds more water? नैमा या फिर जीतू किसके जग में ज्यादा पानी जाएगा. Ma'am, if fourth standard is over, let me know. Yes, you can. Have you completed that question? Yes, have you completed with this? So can you show me? I'm unable to see it properly. What's the answer? 2.52. 2.52. What they have asked to. Okay. Okay. Let it be. We can check it afterwards.
Okay, so यहाँ पे Jitu's jug will hold more water. Okay, how many glasses of water do you think Jitu should pour to fill his jug? अगर नेमा के जग में 3 glasses of water जा रहा है तो how many glasses will be needed to fill Jitu's jug? कितने ग्लासेस लगेंगे जीतू का जग फिल होने में? यस, around 4 glasses. Now, if Jitu pours one more glass of water, his jug will be around dash dash full, half a full. Okay. So take a screenshot of this, Daksh, and you have to write this along with the answers in your notebook. Done? Yes, have you done? Done. Okay. So you can write this in your notebook and we are going to stop here for today. Okay, you can leave. Bye bye.